Hello students, how are you all? Hope you all are fine. So today I'm here with a very important topic. This topic is very important. Okay? So today I'm here with the chapter number 1, The Clever Jackal, class 4th English, that is Wordsworth. So बच्चों ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. मैं इस चैप्टर की रीडिंग लेकर आई. But why? Chapter is given in book, so why? But the main reason is that most of the students do not have book. और second चीज ये कि मैं आपको इसके साथ साथ हिंदी की explanation भी written form में देने वाली हूँ. मतलब कि अगर कुछ बच्चों को जो है read करना है chapter हिंदी में, English का chapter हिंदी में, तो वो read कर सकते हैं. कितनी बड़ी opportunity आपको मिल रही है बच्चों. So just listen to the video very carefully. अच्छे से सुनिए, understand the chapter and learn which one. So let's start. Firstly, we will read in English, okay? Let us start. Once upon a time, there lived a cruel and ferocious lion in a deep forest. He lived and ate many animals, any animal that came his way. All the animals of the jungle were afraid of him. One day, all the animals decided to hold a meeting in order to solve this problem. The wise owl proposed that each day one animal should go to the lion as his meal. This was not the best solution, but since the animals were tired of living in fear all time, they reluctantly agreed. They all went to the lion and told him about this proposal. The lion agreed. The animals decided among themselves to take turns to go to the lion for the first day as deer was sent to the lion. His wife, the doe, cried all day. तो फर्स्टली मैं आपको इसके कुछ कुछ जो डिफिकल्ट वर्ड्स है वो बता देती हूँ. क्रूअल मतलब होता है क्रूर, मतलब हार्श. फिरोशियस यू नो, फिरोशियस मतलब कि व्हाट, violent or inhuman. Then these are all given in your book and I have made a special video for it. मैंने इसके लिए वीडियो भी बनाई है. So the next is the Hindi translation. So मैं आपको हिंदी में बताऊंगी, आपको सब समझ में आ जाएगा. एक बार की बात है, एक घने जंगल में एक क्रूर, यहाँ पे फिरोशियस और जो क्रूअल है उन दोनों का मतलब सेम ही था, तो इसीलिए क्रूर और क्रूर आ गया. क्रूर और क्रूर शेर रहता है, ठीक है. क्रूर और जंगली आप कह सकते हैं, शेर रहता था. उसने अपने रास्ते में आने वाले किसी भी जानवर को मार डाला और खा लिया. जंगल में सभी जानवरों से डरते थे. एक दिन सभी जानवरों ने इस समस्या को हल करने के लिए एक बैठक आयोजित करने का फैसला किया. बुद्धिमान उल्लू ने प्रस्ताव दिया या सजेस्टेड है ना, प्रस्ताव दिया कि प्रत्येक दिन एक जानवर को भोजन के रूप में शेर के पास जाना पड़ेगा. बट ये क्या था, ये सबसे अच्छा समाधान नहीं था. लेकिन चूंकि या फिर क्योंकि भी आप बोल सकते हो, थोड़ा आपको ऑड सा लगेगा, लेकिन क्योंकि जानवर डर के साए में जीने से थक चुके थे, है ना. हर समय वो अनिच्छा से नाराजी होते थे. वे सब शेर के पास गए और उसे अपने प्रस्ताव के बारे में बताया. वो मान गया. ही एग्रीड. जानवरों ने आपस में निर्णय लिया कि वे बारी बारी शेर के पास जाएंगे. पहले दिन एक हिरन को शेर के पास भेजा गया. उसकी पत्नी डो, हिरन की वाइफ डियर डो, दिन भर रोती रही. सो समझ में आई आपको ये फर्स्ट पैराग्राफ. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. The next day, a rabbit was sent. Her little children were very upset and did not eat anything for 3 days. A whole month went by in this way. The animals were sad to see their friends and family members leaving one by one, but there seemed no solution in sight. मतलब कि उनको कोई भी और रास्ता नजर नहीं आ रहा था. वो इस चीज से बहुत ज्यादा थक चुके थे, वो बहुत ही दुखी थे, बट उनको कोई भी और रास्ता जो है वो नजर में नहीं आ रहा था. अगले दिन एक खरगोश भेजा गया. उसके छोटे बच्चे बहुत परेशान थे और 3 दिन तक कुछ भी नहीं खाए. इस तरह पूरा एक महीना बीत गया. जानवर अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों को एक एक करके जाते हुए
देख दुखी हुए, लेकिन कोई समाधान नजर नहीं आ रहा था. I hope you have all have understood this thing. Let's move to the next paragraph. Okay. One sunny morning, it was the turn of Jekyll. It was the turn of the Jekyll. His entire family came to say their final goodbyes. Like all the other animals, he also did not want to go to the lion, but he felt all his friends and family members half-heartedly. So उसका भी मन नहीं था बाकी एनिमल्स की तरह जाने का, बट उसने हाफ हार्टेडली आधे अधूरे मन से जो था क्या किया, छोड़ दिया अपने घर वालों को और चल पड़ा. As he was deliberately walked very slowly and reached late, the lion was hungry and hunger had made him angrier than usual. मतलब कि अब वो धीरे धीरे जा रहा था जयकाल, और वो बहुत ही ज्यादा लेट पहुंचा, और जो लायन था वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था. यूजुअल मतलब कि कॉमनली या नॉर्मली जो वो होता था उससे ज्यादा गुस्सा हो चुका था. एक धूप वाली सुबह सियार की बारी थी. उनका पूरा परिवार उन्हें अंतिम विदाई देने आया था. अन्य सभी जानवरों की तरह वे भी शेर के पास नहीं जाना चाहते थे, लेकिन उसने अपने सभी दोस्तों और परिवार के सदस्यों को आधे अधूरे मन से छोड़ दिया. He left them. क्योंकि वे जानबूझकर बहुत धीरे धीरे चल रहा था, वे देर से पहुंचा. शेर भूखा था और भूख से उसे सामान्य से अधिक क्रोधित होना पड़ा, है ना. वो और ज्यादा गुस्सा हो गया था. By the time Jackal arrived, the lion was ready to eat him at once. वो पूरा का पूरा उसको खाने के लिए तैयार हो चुका था. Okay. Wait. पूरा का पूरा उसको खाने के लिए तैयार हो चुका था. The jackal was very respectfully apologized for being late and informed him that he had set off with two of his friends as part of lion's meal. कि मतलब कि वो क्या था, भाग के आया था. उसको इसने क्या कहानी बताई थी कि उसको रास्ते में एक शेर मिल गया था बिल्कुल उसकी तरह, जो कि उनको खा रहा था. उसके दो दोस्तों को वो खा चुका है. However, on their way, they were attacked by another lion who said that he was a भी है यहाँ पर, he was the king of the jungle. ये सब झूठ कहा, बट उन्होंने क्या कहा कि उनको रास्ते में क्या मिला था, एक और शेर मिला था जो क्या था, जो कह रहा था कि मैं आपके जंगल का शेर हूँ. The other lion had then eaten both his friends. उस लाइन ने क्या किया, उसके दोनों फ्रेंड्स को खा लिया था. It was with great difficulty that he had managed to escape. मतलब escape मतलब भागना, to save yourself. उसने जो है अपने आप को बहुत मुश्किल से बचाया. जब तक सियार पहुंचा तब तक शेर उसे तुरंत खा जाने को तैयार था. सियार ने आदरपूर्वक यानी रिस्पेक्टफुली देर से आने के लिए क्षमा याचना की यानी अपोलोजाइज्ड, और उसे सूचित किया कि उसने अपने दो मित्रों के साथ सिंह के भोजन के लिए प्रस्थान किया है. हालांकि रास्ते में उन पर एक और शेर ने हमला किया, जिसने कहा कि वे उनके जंगल का राजा है. दूसरे शेर ने तब अपने दोनों दोस्तों को खा लिया और बड़ी मुश्किल से वे अपनी जान को बचाकर भागा है. वे भागने में सफल रहा. The lion was furious on hearing this. On hearing is repeated. On hearing this, he ordered the jackal to take him to the place where the other lion was. जहाँ पे दूसरा लाइन था वहां पे उसने उसको जाने के लिए बोला. The jackal took him to a well. The lion saw his reflection in water and thought that it was the other lion. He was so angry that without thinking, he pounced. I told you pounced. Pounced means attacked at his old reflection and fell into the well. He struggled for some time, but finally drowned. So ये सुनकर शेर आग बबूला हो गया. उसने सियार को आदेश दिया कि वह उसे उस स्थान पर ले जाए जहां दूसरे शेर को उसने देखा था या जहां दूसरा शेर था. सियार उसे एक कुएं में ले गया. शेर ने अपनी पानी में अपना प्रतिबिंब देखा. प्रतिबिंब मीन्स रिफ्लेक्शन, और सोचा कि वह दूसरा शेर है. वह इतना क्रोधित था कि उसने बिना सोचे समझे क्या किया, बिना सोचे समझे वह अपने ही प्रतिबिंब पर उछल पड़ा. He pounced on it और कुएं में गिर गया.
कुछ देर तक संघर्ष करता रहा लेकिन अंत में डूब गया. He struggled for a while and then he drowned. Okay. The clever jackal's intelligence had saved all the other animals of the forest. They were very thankful to him and lived in the forest peacefully ever after. चतुर सियार की बुद्धि ने जंगल के अन्य सभी जानवरों को बचा लिया था. वे उससे बहुत आभारी थे और हमेशा के लिए जंगल में शांति से रहते थे. So friends, thanks for watching this video. This was the whole chapter. मैंने आपको पूरा चैप्टर जो था वो कंप्लीट करा दिया है अच्छी तरीके से, बिल्कुल हिंदी एज वेल एज इंग्लिश एक्सप्लेनेशन के साथ. एक्सप्लेनेशन मैंने थोड़ी फास्ट की है क्योंकि ऐसे वीडियो काफी लेंदी हो जाता है और बच्चे जो है वो बोर हो जाते हैं. थोड़ा एक्टिव रहो तो स्टूडेंट्स फील एक्साइटेड कि आगे क्या होने वाला है. सो फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक दिस वीडियो. आई हैव गिवन यू द वर्ड मीनिंग दैट्स वेल. मैं आपको वर्ड्स मीनिंग्स की भी मैंने इसकी सेपरेट वीडियो बनाई है, वो भी मैंने हिंदी और इंग्लिश में बनाई है क्योंकि मैं जानती हूँ कि बच्चों को जो है वो हिंदी में ज्यादा अच्छे से समझ आती है. इंग्लिश में भी काफी बच्चों को समझ आती है, लाइक सर्टन साइड्स वालों को इंग्लिश अच्छे से समझ आती है, बट सम स्टूडेंट्स दे फील डिफिकल्टी. ओके, सो आई होप कि आपको चैप्टर अच्छे समझ में आ गया होगा. कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर का अगर आपको आ जाएगा, आई होप यू विल बी एबल टू आंसर ऑल दी क्वेश्चंस. So thanks for watching once again. If you haven't subscribed my channel, subscribe it. अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी ये भी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और वीडियोस को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो कि आपके फ्रेंड्स को उनकी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं. ये बिल्कुल ही आपके स्कूल की तरह मैंने आपको पढ़ाया है हिंदी और इंग्लिश में भी. So thanks for watching once again. Bye bye. Take care.